Today we solve exercise 1.3, that is the decimal numbers expressions. We know that numbers are two types. First, with the decimal. Second, without decimal. Numbers are two types. First, with the decimal, and second is the without decimal. Now, first we know that without decimal, like as 4 upon 2, it is without decimal because it exactly divisible by 2, going to 2 times. Okay, so it is called without decimal. Now when we divide 3 by 2, when divide 3 by 2, then we got 1.5. So it is with the decimal, it is without decimal, and it is with it is without decimal and it is with the decimal. So we shall read it how we express numbers in decimal or without decimal. We can say that there are two types, and which types of they are after experiencing. Now let's see. First question are, write the following following in a decimal form and say what kind of decimal expression each has. We know that decimal numbers also two types. First, repeating decimal, or second, non-repeating decimal. We can say that some decimal numbers exactly divisible, it goes sometimes and that exactly divisible, and sometimes we say that sometimes it goes on so on and so on at indefinitely so many numbers. Okay? And sometimes it's occur number times, sometimes it's occur and it's going to on, sometimes it's not occurring, it not repeating. So let's see how to it. Now first, 36 upon 100, we can write it 36 upon 100 equal, if we divide 100 if we divide 36 by 100, we got 0.36. So it is terminating because it is divisible and is going to 2 time decimal. So it is terminating. It is terminating decimal expansion. If we express it in a decimal, so we get it is terminating. Okay. Next, if we talk about 1 upon 11, then we got 0.09090909 and so on. Okay, it goes continuously. Or we can write it 1 upon 11 as 0.09 bar. It's so that it go and so on continuously. So it is not terminating because it's not divisible exactly 11. 11 not exactly divide to 1, it comes repeating, है ना. So it is called non-terminating. Occurring means repeating, it's repeat 09 repeating 090909. So we can say that it is non-terminating, occurring repeating, we can say that repeating, occurring repeating decimal expression. Now second question are 4 whole 1 upon 8. We can write it 4 whole 1 upon 8, 33 upon 8. 4 8 ja 32 plus 1 33 upon 8. Now if we divide 33 by 8, we get 4.125. So it is, we can say that we can show that 125 is it terminating? It is terminating. So it is terminating decimal expression. Okay, next,
Question number, note that question number first, fourth and fifth do yourself. Question number fourth and fifth you can do it yourself. So solve question number 6, 329 upon 400. So when we divide 329 by 400, we get 0.8225. So it is terminating because it terminates after 4-point decimal. So we can say that it is terminating decimal expression. Now question number second, what is say? You know that 1/7 equal 0.142857 to bar. You can say that it is non-terminating but occurring. It is non-terminating but repeating or occurring. You can predict that what the decimal expression of like as 1/7. What is decimal expression of 2/7, 3/7, similarly 4/7, 5/7 and 6/7 are without exactly doing long division. So if so, how? Next we say that if given 1/7 equal 0.142857, we can write it in 1/7 equal 0.142857 to bar. It tells us it is repeating. It is repeating, non-terminating and repeating. How many digits are repeating? There are 6 digits are repeating. 1, 4, 2, 8, 5, 7. They are repeating so many times. Then how to solve 2/7? So then we can write it 2/7 as 2 multiply 1/7. We know that the value of 1/7 is 0.142857 to bar. So we write it 2 multiply 0.142857 to bar. We multiply by these numbers. 2 7 ja 14, 2 5 ja 10 or 1 remainder. Carry 11. Similarly, as we multiplied it. Last time we got 0.285714 to bar. Similarly, if we divide 3 by 7, we can write it 3 multiply 1/7. So 3 multiply, we know that 1/7 value of 1/7 is a 0.142857. If we multiply by 3, then we get 0.428571. And similarly 4/7 equal 4 multiply 1/7. Then 4 multiply 0.142857. Our answer we shall get 0.57128. Now similarly 5/7 we can write it 5 multiply 1/7. Also it 5 multiply 0 point something 0.1425857. After multiplying we get 0.714285. Similarly 6/7 we can write it 6 multiply 1/7. We know that 1/7 value we multiply by 6 in 0.14287 to bar. We get that after multiplying 0.857142. So it is our answer. अब हम हिंदी में थोड़ा सा आपको बताते हैं, जल्दी से देखिए। आपसे पूछा था कि निम्नलिखित संख्याओं का जो भिन्न के रूप में दिया है परिमेय संख्या, उनको आपको दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, क्या दिखाना है? दशमलव प्रसार। तो
ऐसे में आपको अब पता है कि भाई हमको संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या। जैसे आपका ये बिना दशमलव वाली संख्या है और ये दशमलव वाली संख्या, ठीक है। जब भी किसी भिन्न कोई अंश मतलब कहते हैं किसी संख्या का किसी में भाग दिलाया जाता है तो या तो दशमलव वाली संख्या आती है और या तो दशमलव वाली संख्या आती है और या तो बिना दशमलव। अगर पूरा कट गया तो बिना दशमलव वाला, और अगर पूरा नहीं कट रहा है तो हमारा दशमलव में कुछ जाता है, ठीक है। यही तो होता है जब भी हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दिलाते हैं, किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दिलाते हैं तो या तो वो पूरी तरह से कट जाएगा, और अगर पूरा कट जाएगा तो यानी बिना दशमलव के होगा, और अगर वो पूरी तरह से नहीं कटता तो हम दशमलव में ले जाते हैं। तो यानी क्या, दशमलव, अर्थात या तो वो बिना दशमलव वाला होगा और या तो वो दशमलव वाला होगा, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट ऐसे लग गया था, ठीक है। तो ऐसे में आपको इसी तरह से आपको दिखाना है कि बताइए कि जो परिमेय संख्याएं दिया गया है, ठीक है, या भिन्न जो दिया गया है वो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। तो अब जैसे 36/100 दिया तो भाई 100 का भाग दिलाएंगे तो लास्ट टाइम आप जब भाग दिलाएंगे तो 0.36 आएगा। कहीं ना कहीं ये देखो कट गया ना, लास्ट टाइम दशमलव के कुछ 2 अंक जाने के बाद ये पूरे तरह से कट गया, तो हम कह सकते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, यानी ये शांत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जाके वो शांत हो जा रहा है या ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब 1/11 को हम क्या भाग दिलाते हैं, ठीक है, 1/11 हो गया तो 1/11 को हम जब भाग दिलाते हैं 0.09 यानी क्या 0.9 बार बार रिपीट कर रहा, तो हम 1/11 को 0.09 पे बार लगा दिया, इसका मतलब ये 0.9 बार बार रिपीट करेगा। अब ये रिपीट कर रहा यानी कट रहा नहीं रहा और रिपीट हो रहा, तो इस नाते हम क्या लिख सकते हैं, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग अक्यूरिंग, अर्थात अक्यूरिंग को ही रिपीटिंग बोलते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। अर्थात क्या जो भिन्न होगा, ठीक है, या परिमेय संख्या होगा वो अशांत होगा, ठीक है, और ठीक है क्या रिपीटिंग आवर्ती होगा, आवर्ती मतलब बार बार आने वाला, ठीक है। अब अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, 4 सही 1/8 है, तो 4 सही 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 4 8 32, 32 1 33, 33/8 हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4.125 हो जाएगा। अब आपने देखा कि 3 अंक दशमलव के 3 अंक जाने के बाद वो कट गया, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी ये क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, शांत दशमलव वाली संख्या होगा, ठीक है। अक्यूरिंग भी नहीं कट जा रहा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा और पांचवा खुद से लगाना होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पर चौथा और पांचवा है, आपको खुद से लगाना होगा, ठीक है। भाग दिला दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा किस तरह का है, ठीक है। खैर हम छठा लगा देते हैं, तो 329/400, तो 400 का भाग जब 329 में दिलाएंगे तो 0.8225 आ रहा। आपने देखा अंतिम में समय में जाके वो कट गया, ठीक है, भले से दशमलव है लेकिन वो कटा, तो इट इज़ क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब आपसे दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा है, देखिए जल्दी से, कि हाँ आपसे पूछा है कि अगर आप यू नो दैट 1/7 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 0.142857, ठीक है। और तो ऐसे ही बताइए बिना भाग दिलाए, ठीक है, बिना भाग दिलाए आप बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को आप क्या लिख सकते हो बिना भाग दिलाए, ठीक है। और अगर लिख सकते हो तो कैसे लिखोगे बताइए आप, ठीक है। तो हमने देखिए 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857, ठीक है, ये आपको दिया भी था और आप ऐसा लिख भी सकते हो, और इस पर बार लगा, इसका मतलब 1428557 बार बार रिपीट करेगा, मतलब बार बार आएगा, ठीक है। खैर इसी नाते हमने रिपीट लगा दिया। अच्छा जब 1/7 को इतना लिख सकते हो तो 2/7 को क्या लिखेगा भाई, 2/7 को 2 गुणे 1/7 लिखेंगे, ठीक है। और 1/7 का आपको पहले से मान पता है, तो भाई 1/7, ठीक है, ऐसे लिख 1/7 का जो मान है वहाँ लिख दीजिए, और 2 तो था ही, तो 2 का गुणा इनमें करा दीजिए, पीछे से आप कराइए, तो देखो 2 7 14, एक हाथ से 2 5 10 11, ठीक है, एक हाथ से 2 8 16 1 17, ठीक है, ऐसे आप गुणा कराते जाइएगा तो आपको लास्ट टाइम मिलेगा क्या, 0.285714, ठीक है। ये रहा आपका 2/7 का मान, बिना भाग दिलाए आपने ले दिया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको मान लीजिए 3/7 का निकालना है, तो 3/7 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1/7 लिखेंगे, और 3 वैसे रहने दीजिए, और 1/7 का आपको पता ही कि क्या मान होता है, मतलब चूँकि दिया ही है तो क्या 0.142857 दिया है, उसी में हम क्या करेंगे 3 का गुणा करा देंगे, पीछे से गुणा कराइए, 3 का 7 में गुणा कराइए 21, यानी 2 हासिल, 3 × 15 2 17, यानी 1 हासिल, ठीक है। ऐसे मतलब आप करते जाइएगा, आपको लास्ट टाइम मिलेगा क्या 0.428571, ठीक है। अब इस पर बार लगा दीजिए, ठीक, ऐसे 4/5, ठीक है,
4/7 का भी ऐसे होगा, 5/7 का भी होगा, 6/7 का भी वैसे होगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।